سندھ سرکار نے سندھ پولیس کے 16 گریڈ کے 91 انسپیکٹرز کو 17 گریڈ میں ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ کے عہدوں پر ترقیاں دے دیں۔ سلیکشن بورڈ 3 کی منظوری کے بعد محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے آزاد نہریوں سے۔ جی آزاد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سندھ سرکار نے سندھ پولیس کے 91 16 گریڈ کے انسپیکٹرز کو 17 گریڈ میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ یعنی ڈی ایس پی کے عہدوں پر ترقیاں دے دی ہے۔ ترقیاں پانے والوں میں جو شامل ہیں ان میں جو مشتاق علی شاہ، عبدالواحد چانڈو، عامر گل، مصطفیٰ حسین راجپوت، جبکہ شاہ زمان اختر جاوید، طاہر حسین، قربان علی ملا، عبدالمجید آرائیں، اشفاق احمد، ندیم انور، امتیاز علی، قاضی الطاف حسین، اس کے علاوہ جو شبیر احمد شیخ سمیت 91 انسپیکٹر جن کو 16 سے 17 گریڈ میں ترقیاں دے دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے جو صوبائی سلیکشن بورڈ جو 3 ہے ان کی منظوری کے بعد محکمہ داخلہ سندھ نے انسپیکٹر کی ترقیوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے آزاد نوری، اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ۔ واٹر کارپوریشن کی جانب سے پانی کے عالمی دن کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے تقریب سے خطاب کیا۔ Distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I won't keep you waiting because we're very close to the iftar time. People should be hungry right now. I'm not a water expert. The water experts have spoken and you've heard all of that. As the mayor, as a political activist, I can give you my political commitment that we believe in reforming the state of affairs of Karachi Water Sewerage Corporation. We believe in maintaining the autonomous and independent decision making of Karachi Water Sewerage Corporation, and we do realize that there is a very serious shortfall between the demand and supply in the city of Karachi, and inshallah I have about 3 years and 3 months left. My target is that during these 39 months Karachi Water Sewerage Corporation should be able to induce 300 MGD additional water into Karachi. And this can be done by way of collaboration between the Karachi Water Sewerage Corporation and federal government, with the provincial government and with private stakeholders by way of public-private partnership. So this is my solemn commitment to the people of Karachi, to whoever who's listening, the Council Generals who are present here as well, that I'm convinced that public-private partnership is the way forward. For a city like Karachi, there is tremendous potential, and we would welcome these foreign expertise, foreign companies to come into Karachi to help us mitigate the water needs of the people of our city of Karachi. So rest assured, the political will is there, the political intention is there, there is a vision plan ahead of us. All we need to do is make sure that we work together, we collaborate together, and we're able to bring things forward so that that target of 300 MGD water is achieved in the next 39 months for the people of Karachi. So inshallah, 19th June 2027 is when my tenure ends, and hopefully on the 18th of June I would be able to proudly say that Karachi Water Sewerage Corporation has been able to induct about 300 million gallons of water a day, for which I look forward to the support of the people of Karachi. I look forward to the support of the federal government, the provincial government, and private investors. So hopefully myself and the team of Karachi Water Sewerage Corporation would be able to live up to the target that we've set for ourselves, and we would be able to make everyone proud. Towards the end, I would like to commend the management of KWSC for celebrating this World Water Day. This is probably the first time this is being done in Karachi. So kudos to the management, which is willing to experiment with things. They're willing to mend their ways so that more awareness is created and public also gets to know whatever the KWSC is doing. So inshallah, better times will be ahead for the people of Karachi. Thank you very much. امراض قلب کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں ادویات کی کمی، دل کے مریضوں کو گھنٹوں لائن میں لگنے کے بعد بھی مکمل ادویات نہ مل سکیں۔ مریضوں کو 8 میں سے صرف 2 یا 3 دوائیں ہی مل رہی ہیں۔ رابعہ اشرف کی رپورٹ ہے۔ امراض قلب کے سب سے بڑے اسپتال میں ادویات کی قلت، دل کے مریضوں کو مکمل ادویات کے حصول میں مشکلات کا سامنا۔ شہری کہتے ہیں 8 دوائیں ڈاکٹر نے لکھ کر دیں، تاہم اسپتال سے صرف 2 یا 3 ہی مل سکی۔ میری 8 دوائیں ہیں جس میں سے 3 ملی ہیں مجھے۔ اب 5 دوائیں میں باہر سے کیسے لوں گا، کہاں سے لوں گا؟
शहरी ने शिकवा किया कि कम कीमत दवा तो मिल जाती हैं, लेकिन महंगी अद्वियात बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। सबसे सस्ती वाली दवाई मुझे मिली हुई है, महंगाई वाली 4 जो ना बाहर से खरीदने। पहले तो मेरे को पूरे दवाई मिलता था, ये दूसरा दवाई एक ही दवाई मिल रहा है। कहाँ से कमाई करेंगे, हमने मजबूर आदमी है, धक्का खाने रोड के ऊपर और की करने। NICVD आने वालों का कहना था कि इतना किराया लगाकर अस्पताल आते हैं, कतार में लगते हैं, इसके बाद मालूम होता है कि दवा ही नहीं, इतनी महंगाई में हज़ारों की अद्वियात कैसे खरीदें। तर्जुमान NICVD के मुताबिक अद्वियात की कीमतों में रद्दोबदल की वजह से वेंडर्स की जानिब से कुछ अद्वियात की तरसील में ताख़ीर हुई है, ताहम 1-2 रोज़ में मसला हल हो जाएगा। कैमरामैन इमरान एके के साथ राबिल अशरफ, सिटी 21। करोड़ रुपए छालियां क्लियर करने का इंकशाफ। कस्टम इंटेलिजेंस कराची ने इंतहाई मुजरे सेहत छालियां के दरामद में मुलविस एक गिरोह का सुराग लगा लिया। मुजरे सेहत दरामदी छालियां क्लियर कराने पर मुकदमा दर्ज। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, क्या तफसीलात हैं? जी, कस्टम इंटेलिजेंस कराची की बड़ी कार्रवाई है। करोड़ों रुपए छालियां जो है क्लियर कराने का इंकशाफ हुआ है। कस्टम इंटेलिजेंस का एक्शन भी हुआ है और मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। कस्टम इंटेलिजेंस कराची ने इंतहाई मुजरे से छालिया की दरामद में मुलविस एक गिरोह का सरगना जो है सुराग लगाया है और गिरोह का प्लांट एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के अफसरान से मिली भगत का भी इंकशाफ हुआ है। और कस्टम इंटेलिजेंस ने बताया कि गिरोह लेबोरेटरी की जाली रिपोर्ट इस्तेमाल करके 108 टन छालिया क्लियर कराई गई है, जो स्विच सुपारी बनाने वाली कंपनियों को सप्लाई करके मुनाफा कमाया गया है। मौजूदा तौर पर 108 टन दरामदी छालियां क्लियर कराई गई है। कस्टम इंटेलिजेंस कार्रवाई में RA एम्प्लेक्स नामी कंपनी और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे का मरकजी मुलजिम अरशद खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। गूगल कराची में ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू करने का ख्वाहिशमंद। USAID मौसमियाती तब्दीली का मंसूबा तालीम के लिए लाने के लिए भी ख्वाहां। वज़ीर आला मुराद अली शाह अमरीकी कौंसल जनरल से उनकी मुलाकात हुई है। मिशन डायरेक्टर के सैलाब मुतासरा स्कूलों की तामीर के लिए भी भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई गई। USAID और महकमा प्लानिंग का मुश्तरका इजलास बुलाने पर इत्तफाक किया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध और अमेरिका के कौंसल जनरल में अहम मुलाकात। मुराद अली शाह ने USAID से सिंध में शोबे तालीम में नए मंसूबे लाने पर जोर दिया। USAID पाकिस्तान की सरबराह ने वज़ीर आला के शोबे तालीम में दिलचस्पी को सराहा। केट सोमोगसिरी ने बताया कि USAID मौसमियाती तब्दीली का मंसूबा तालीम में लाना चाहती है। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि सैलाब से 21 लाख घर मुतासिर हुए, 5000 घरों के लिए फंड्स जारी किए, 1000 घर तामीर हो चुके हैं। अमेरिकी कौंसल जनरल ने बताया कि USAID सैलाब मुतासरा स्कूलों की तामीर में हुकूमत सिंध की मदद करेगा। USAID सरबराह ने मदर चाइल्ड न्यूट्रिशन पर सिंध में काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। इजलास में तय हुआ कि USAID और महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का अलग इजलास होगा। एजेंडा में सैलाब मुतासरा स्कूलों की तामीर और ग़िज़ाई किल्लत के मंसूबे पर बहस होगी। USAID अमेरिकी कौंसल जनरल ने बताया कि गूगल कराची में ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू करना चाहती है। वज़ीर आला सिंध ने हुकूमत सिंध की जानिब से गूगल को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। हैदरी मार्केट के पार्किंग एरिया में ईद बचत बाजार के क़याम का मामला। KMC की जानिब से इजाज़तनामे के खिलाफ ताजर डट गए, जबकि नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के चेयरमैन ने भी ताजरों का साथ देने से इनका ऐलान कर दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। साल भर की माली मुश्किलात के बाद रमज़ानुल मुबारक में रिलीफ मिलने की उम्मीद, मगर ताजिरों की ये उम्मीद भी चकनाचूर होने का खदशा। नॉर्थ नाज़िमाबाद की हैदरी मार्केट के दुकानदार KMC के महकमा E&IP की जानिब से ईद बचत बाजार के जारी इजाज़तनामे के खिलाफ डट गए। इजाज़तनामा मनसूख कराने के लिए चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद के दफ्तर पहुंच गए। E&IP जो KMC का डिपार्टमेंट है, उसने मेयर के बिहाफ पे एक बचत बाजार लगा दिया है हैदरी मार्केट के ऊपर, जिसमें जो जगह है वो हमारे मुताबिक वो टाउन TMC के अंडर में आती है, मगर परमिशन उसकी वो KMC का डिपार्टमेंट दे रहा है। तो ये 3-4 हज़ार दुकानदार जो है ना वो परेशान हो गए इस चक्कर में। बचत बाजार लगने से जनाब एक तो पार्किंग ख़त्म हो जाएगी, दूसरा ये कि जो दुकानदार है उसका माशी तौर पे इस्तेमाल होगा,
जो लोग 11-11 महीने 12-12 महीने के कर्जदार हैं, वो 1 महीना मिलता है अपना कर्जा उतारने के लिए, वो 1 महीना भी ये गवर्नमेंट छीन रही है हम लोगों से, हमें बेबस कर दी है, कहीं का नहीं छोड़ी, सिर्फ अपने मामला दुरुस्त करने के लिए। तो मेन मार्केट है हैदरी मार्केट, और हमने तमाम मतलब स्टेक होल्डर्स जो हैं हैदरी के, उन्होंने कमिश्नर कराची को, मेयर कराची को, DC को, AC को इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात तहरीरी शक्ल में नोट करा दिए थे, बाकायदा उनको रिकॉर्ड कराए थे कि किसी किस्म के बचत बाज़ार की इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि गुज़िश्ता साल के ज़ख्म अभी तक हमारे ताज़ा हैं। चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन बोले कि हैदरी मार्केट का इलाका नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की मलकियत है, जिस पर KMC ने खिलाफ कानून बचत बाजार का इजाज़तनामा जारी किया, किसी सूरत बचत बाजार नहीं लगने देंगे। बड़े वाज़े कोर्ट के जो जजमेंट्स मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी है और जो है हाई कोर्ट की भी है, जस्टिस नदीम अख्तर की भी हैं, 2016 के अंदर उन्होंने दी थी कि जो नेचर ऑफ दी जो है पब्लिक प्रॉपर्टी, उसके ऊपर जो चाहे उसके अंदर फुटपाथ हैं, साइड वॉक्स हैं, सर्विस रोड्स हैं, वो किसी भी तरीके से कमर्शियल उसके अंदर यूज़ नहीं हो सकता। टाउन चेयरमैन हर जगह पे दरख्वास्तें पहले से दी हुई थी कि बचत बाज़ार यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, उसके बावजूद भी बचत बाज़ार यहाँ पे लगाने की कोशिश की जा रही है। हैदरी मार्केट का शुमार जिला वस्ती की मॉडल मार्केटों में होता है, जहाँ पार्किंग एरिया में बचत बाजार का इनेकाद ईद सीजन के दौरान खरीदारों और दुकानदारों के लिए मसाइल को जन्म दे सकता है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। आर्जी नहीं मुस्तकिल वाइस चांसलर चाहिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के तलबा का मुतालबा। इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाजी धरना तीसरे रोज़ में दाखिल हो गया। एहतजाजी धरने में शामिल तलबा का कहना है कि वाइस चांसलर को आर्जी चार्ज नहीं मुस्तकिल चार्ज देना चाहिए। शाहरुख शाह की रिपोर्ट देखते हैं। मुस्तकिल वाइस चांसलर समनी इम्तिहान की फीस में कमी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के तलबा का एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल। तलबा ने गेट पर धरना दिया और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। सिटी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए तलबा का कहना था कि सप्ली फीस सब तलबा के लिए एक जैसी रखी जाए। हमारा ये एहतजाज 3 दिनों से मुसलसल जारी है। रमज़ान में रोज़ों के साथ हमारी सहरी, हमारी अफ्तारी, हमारी नमाजें इस गेट पे हुई हैं और ये इंतज़ामिया हमारी बातें सुनने को तैयार नहीं है। तलबा की जानिब से मुतालबात में कहा गया कि काफी अरसे से VC की तैनाती नहीं हुई, मुस्तकिल VC दिया जाए। हम चाहते हैं कि रीचेकिंग पॉलिसी हो, किसी को अगर कोई क्लेम है तो वो अपना पेपर रीचेक करवा सके। तीसरा मुतालबा हमारा यही है कि यूनिफॉर्म सप्लीमेंट्री फ़ी हो, सबकी फ़ीस जो है बराबर हो, ऐसे ना हो किसी से 5,000 लो, किसी से 8,000 लो। और हमारा सबसे वाहिद और अहम मुतालबा जो है कि हमारा VC जो है उसको परमानेंट किया जाए। हमारे पास कोई VC है ही नहीं। तलबा ने मजीद कहा कि सेल्फ फाइनेंस फीस और सप्ली या एडमिशन कोर्स फीस में भी कमी की जाए। हमारे ये मुतालबात नहीं माने जाते तो एहतजाज जारी रखा जाएगा। कैमरामैन मनान के साथ शाहरुख शाह, सिटी 21। कराची में दिन भर शदीद धूप और गर्मी का राज बरकरार, शहरियों का गर्म मौसम से बुरा हाल। शहर में समुद्री हवाएं बहाल हो गई, लेकिन नमी ज्यादा होने से गर्मी की शिद्दत कम नहीं हो सकी। आयमा खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम खुशगवार, कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, दिन भर रोजेदारों का होता रहा इम्तिहान। शहर में दर्जा हरारत कम, लेकिन हवा में नमी का तनासब बढ़ गया। नमी बढ़ने से गर्मी का एहसास बढ़ गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार फराज का कहना है कि समंदरी हवाएं बहाल होने से नमी का तनासब बढ़ गया है। नमी का तनासब बढ़ने से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही है। सूरज की तपिश के बायस दिन में गर्मी की शिद्दत ज्यादा है। वैसे तो मार्च का महीना ऐसा होता है कि जिसमें कराची में खासकर जो आखिरी दिन होते हैं 15 मार्च या स्पेसिफिकली कहें तो 20 मार्च के बाद गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है ग्रेजुअली। उसकी वजह यही है कि बिल्कुल सनी डेज़ होते हैं, आपको पता है, और विंड निस्बतन कम स्पीड की विंड चल रही होती है, यानी 4 से 6 नॉटिकल माइल या ज़्यादा से ज़्यादा 8 नॉटिकल माइल। और अगर तेज़ हवाएं हों तो उसके बायस ज़ाहिर है फिर बादल कुछ ना कुछ आएँ तो टेम्परेचर माइल्ड रहता है। अदरवाइज़ यही 34 यानी 33 तो तकरीबन 32.6 है, 33 कह सकते हैं हम उसे, वो तो नॉर्मल टेम्परेचर है या एवरेज टेम्परेचर है मार्च के महीने का। मार्च के आखिरी दिनों में मौसम गर्म रहता है, जबकि आने वाले दिनों में भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ आयमा खान, सिटी 21। मुल्क को मौशी बहरान से कैसे निकाला जाए, जामिया बनौरिया आलमिया के मोहतमिम मुफ्ती नुमान नईम ने हल बता दिया। कहते हैं कि मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम लोगों को मिलकर काम करना होगा। नीयत मसरूफ मुल्क और कौम की तरक्की होनी चाहिए। मुफ्ती नुमान नईम का मज़ीद क्या कहना है, सैयद ज़ुबैर राशिद बताएंगे।
बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया बनूरिया अलमिया में और जनाब मुफ्ती नुमान नईम साहब इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। 10 रोज़ा तकमील कुरान जो है वो मुकम्मल हुआ। मुफ्ती साहब, क्या कहना चाहेंगे? पहला जो अशरा है वो इख्तिताम को पहुँचा है। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, लेकिन मुल्क जो है बहुत ही मुश्किल हालात से इस वक्त गुजर रहा है। क्या कहेंगे, क्या रोशनी डालेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि वाक़तन मुल्क की जो इस वक्त सूरत हाल है वो बहुत ही नाजुक है और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है। महंगाई और पेट्रोल के हवाले से जब आप देखें, इसी तरह जो नर्ख़ हैं और जो इस वक्त आपने देखा कि फ़्रूट्स हैं उनके कितने महंगे दामों लोग बेच रहे हैं। और हालांकि हुकूमत की तरफ से रेट्स वगैरह निकाले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है इसका एहतियात नहीं कर रहे। और मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि देखें, इस महंगाई के ख़ात्मे की सूरत सिर्फ़ एक है और वो यही है कि मुल्क के जितने भी हुक्मरान हैं वो मिलकर इस मुल्क के बारे में सोचें, उस मुल्क को मुस्तहकम करने का सोचें, बजाय इसके कि आपस में लड़ाई झगड़ा, आपस में लड़ने के। और असम्बलियों के अंदर जिस तरीके से एक दूसरे को गालम गलोच, लड़ाई झगड़ा जो असम्बली में होता है, खुदारा ये एक गलत इमेज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जा रहा है। लिहाजा मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से कहूँगा, खुदारा इस मुल्क के लिए कुछ करें, इस मुल्क की हिफाजत के लिए कुछ करें। और ये उसी वक्त होगा कि जब हम मिलजुल कर इस मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिश करेंगे और महंगाई के ख़ात्मे की कोशिश करेंगे। और हर बंदा अपने तौर पर कोशिश करे, हर बंदा अपने तौर पर कोशिश करे। और जैसे कि इनका ये कहना था कि मुल्क को अगर मौशी बहरान से निकालना है तो हर एक को जो है अपना किरदार अदा करना होगा। मुफ्ती नुमान नईम साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी, रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए जमात इस्लामी का ऐसा इक़दाम। नॉर्थ नाज़िमाबाद में बचत बाजार कायम कर दिया गया। फल और सब्जियां कराची की रेट लिस्ट से भी कम है। कमिश्नर कराची ने जो रेट लिस्ट फ्राहम की थी, जो दी थी, उससे भी कम कीमत में फ़रोख्त की जा रही है। मज़ीद जानते हैं अयाज राना की रिपोर्ट में। नेकियां समेटने का महीना, रहमतों का खजीना। जमात इस्लामी ने आवाम को रमजान में रिलीफ देने की रिवायत बरकरार रखी। कराची की आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जमात इस्लामी की जानिब से नॉर्थ नाज़िमाबाद में बचत बाजार कायम कर दिया। बचत बाजार के मुंतजिम मोहम्मद आमिर का कहना है, कमिश्नर कराची की जारी रेट लिस्ट से भी कम कीमत में फल और सब्जियां फरोख्त की जा रही हैं। फ्रूट हमारे पास 100 रुपये दर्जन केला है, 100 रुपये किलो खरबूजा है। तरबूज हमने साइज़ के हिसाब से 300 और 400 रुपये का रखा हुआ है। सेब 120 रुपये किलो है, अमरूद 120 रुपये किलो है। आज तो ये फ्रूट आए हैं। हमारा फर्स्ट रमज़ान से ये 20 रमज़ान तक है। शहरियों की बड़ी तादाद जमात इस्लामी के बचत बाजार पहुंची, खरीदारी की और कहा बाजार के मुकाबले में कीमतें काफ़ी कम हैं। हाँ, रेट भी काफ़ी डिफरेंट है माशाल्लाह से। और जिस तरह की आजकल महंगाई चल रही है तो ये तो कराची के अवाम के लिए एक तोहफ़ा है। तो माशाल्लाह से हम लोग भी आए हुए हैं, बाकी लोग भी आए हुए हैं। होना चाहिए ऐसा, सफ़ेद पोश लोगों के लिए होना चाहिए ये सब चीज़, क्योंकि हर जगह से कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। यहाँ तक के लोगों के दस्तरखान ऐसे छोटे हो गए ना कि कुछ भी नहीं है खाने के लिए। अवाम ने हुकूमत से अपील की है, सियासी जमात अवाम को रिलीफ दे सकती है तो हुकूमत क्यों नहीं रिलीफ फराहम कर रही। कैमरामैन वाहिद खान के साथ अयाज राना, सिटी 21। गर्मी का मौसम हो और सख्त धूप या इफ्तार का वक्त, सफ़ेद वर्दी पहने सड़कों पर नजर आने ट्रैफिक वार्डन्स अपने फराइज़ की इंजामदही में मसरूफ हैं। लेकिन सरकार की नजर करम से दूर 4 साल से अफ्तारी अलाउंस से महरूम हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। अफ्तार के वक्त हर कोई होता है जल्दी में। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना एक बड़ा मिशन। ट्रैफिक वार्डन्स ये फर्ज अंजाम देने में मसरूफ। बदकिस्मती से सख्त नौकरी करने वाले बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा सिटी वार्डन 1000 मुलाजमिन गुज़िश्ता 4 साल से रमजान में मिलने वाले अफ्तारी अलाउंस से महरूम है। डिप्टी डायरेक्टर सिटी वार्डन शहबाज खान के मुताबिक हर साल बाकायदगी से फाइल बनाकर दी जाती है मगर फंड जारी नहीं होते। ये साहब मेयर वसीम अख्तर साहब के टाइम से हमारा अफ्तारी अलाउंस बंद हुआ है, हमें नहीं मिला। लास्ट टाइम जब मेयर कराची, मौजूदा मेयर कराची मुर्तज़ा वाब साहब जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची बन के आए थे तो उन्होंने हम पे नजर करम की थी और उनकी मेहरबानी से हमें एक अफ्तारी अलाउंस उस वक्त मिला था। टाइम हमारे 3 साल के वाजिबात मौजूद थे, जिसमें से एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वाब साहब जब एडमिनिस्ट्रेटर बन के आए थे तो उन्होंने 1 साल का अफ्तारी अलाउंस हमें दिया था। उस 2 साल वो और 1 साल पिछला 3 साल और ये 4था साल हमारा है। जी बिल्कुल, हर साल जो है रमजान शुरू होने से पहले हम अपनी नोटशीट जो है मूव कर देते हैं। इस दफा भी हमने अपनी नोटशीट मूव की है। होशरबा महंगाई की दुहाई देते हुए सिटी वार्डन का कहना है कि इन्हें यकीन है कि मेयर कराची मजलूम सिटी वार्डन को अफ्तारी अलाउंस जारी करवाएंगे। इंतजार है कि मेयर साहब हम पे एक मरतबा फिर नजर करम करें तो हमारी ये परेशानी दूर हो और रमजान
رمضان میں اس تکلیف میں دھوپ میں جس طرح وارڈن اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اور روڈوں پہ افطار کر رہے ہیں, صحیح ہے, اپنی جیب سے افطار کر رہے ہیں یا کسی مخیر حضرات کی مہربانی سے افطار کر رہے ہیں, اگر ان کو یہ اناؤنس مل جائے گا تو ہم مرتضی وہاب صاحب کے لیے دعا گو رہیں گے. سٹی وارڈن قلیل تنخواہ اور کم اختیارات کے باوجود رمضان ڈیوٹی کر رہے ہیں, جن کا افطار بھی مخیر حضرات کے مرہون منت ہے. کیمرامین اجلان چیپا کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21. رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا آغاز ہوتے ہی عید کی خریداری شروع ہو گئی ہے. مارکیٹیں کھل گئی, تاہم مہنگائی عید شاپنگ کو متاثر کرنے لگی. تفصیلات کراچی سے بسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں. دوسرے عشرے کا آغاز لایا عید کی خریداری کا پیغام. دکانوں پر سامان سج گیا, لیکن پریشان ہیں مہنگائی کے مارے عوام. دکانداروں کو مہنگائی کے باعث عید شاپنگ متاثر ہونے کا خوف. شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے بجٹ آؤٹ ہے, سمجھ نہیں آتا کیا خریدیں اور کیا نہیں. ایسا لگتا ہے کہ جتنے بھی پیسے لے آؤ کم ہی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن مہنگائی تھوڑی کم ہونی چاہیے کیونکہ بہت زیادہ ہی ہے. انسان جتنا کما رہا ہے بس اس میں جو ہے نا گھر کا ہی گزارا ہو پا رہا ہے. بس سوچ سمجھ کیا ہے نواسی کو دلانے کے لیے, اس نے کہاں سے افورڈ کر پائے, کھانے پینے کا نہیں ہو رہا, بہت حالات خراب ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے شہریوں کی قوت خرید کو بری طرح متاثر کیا ہے. لوگ کھانے پینے کی اشیاء خریدیں گے یا عید کی شاپنگ کریں گے. دوسری بات یہ کہ لوگ جو ہے کھانے پینے کی اشیاء کی طرف ہیں, وہ اتنے مہنگے ہیں کہ وہ خریدیں یا یہ خریداری کریں. تو اس میں جو بھی ہے آگے ہمیں رجحان ایسا نظر نہیں آ رہا, کسٹمر کا کوئی رجحان نہیں ہے خریداری کی طرف. ہم خود بہت پریشان ہیں. دکانداروں اور شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرے تاکہ مارکیٹوں کی رونقیں بحال ہوں. کیمرامین واحد خان کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21. عالمی آبادی کا چوتھائی حصہ پانی کے صاف پانی کی سہولت سے محروم ہے. عالمی ادارہ صحت کی اسٹیٹ آف دی ورلڈ ڈرنکنگ واٹر رپورٹ سامنے آ گئی ہے. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی 22 مارچ کو پانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, جس کا مقصد صاف پانی کی اہمیت, صفائی ستھرائی اور میٹھے پانی کے وسائل کے پائیدار نظام کی ضرورت کو اجاگر کرنا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں احسن عباسی. پاکستان پانی کی شدید قلت کے شکار ممالک میں تیسرے نمبر پر آ گیا. تاہم اگر صورتحال بہتر نہ کی گئی تو بہت جلد یہ پہلے نمبر پر ہوگا. واٹر کارپوریشن کراچی کی بڑھتی آبادی کو پانی کی فراہمی میں ناکام نظر آ رہا ہے. شہر کو 650 ملین گیلن سے زائد پانی کی کمی کا سامنا ہے. ورلڈ بینک پروجیکٹ پر جانے کے باوجود بہتری نہیں آ پا رہی. شہر کے بیشتر مقامات پر آج بھی لاکھوں گیلن پانی سڑکوں اور ندی نالوں میں بہ رہا. SOMGD پانی فراہم کرنے والی نہر ہب کنال برسوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, جس کے باعث آج تک کراچی کے باسی SOMGD پانی سے محروم ہے. دھابی جی پمپنگ اسٹیشن پر ہر ماہ کے بریک ڈاؤن سے بلک کی سپلائی لائنیں پھٹ جانا معمول بن چکی ہیں, جو کروڑوں گیلن پانی کے ضائع ہونے کا سبب بن رہی ہیں. کراچی کے آج بھی آدھے سے زیادہ علاقہ مکین پانی کی عدم فراہمی پر سراپا احتجاج ہے. واٹر کارپوریشن کے رینجرز کے ہمراہ سینکڑوں آپریشن بھی شہریوں کے مسائل حل نہ کر سکے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی شہری ٹینکر کی مدد سے پانی خریدنے پر مجبور ہیں. جن علاقوں میں پانی آ بھی رہا ہے تو اس میں سے گٹر کا بدبودار پانی ملنے کی شکایات سامنے آ رہی ہیں. آج واٹر کارپوریشن لاکھوں روپے خرچ کر کے عالمی یوم آب منا رہا ہے, جس میں پانی کی اہمیت, صفائی ستھرائی اور میٹھے پانی کے وسائل کے پائیدار انتظام کی ضرورت کو اجاگر کیا جائے گا. جبکہ پانی کی بوند بوند کو ترسنے والے عوام پر یہ خوف طاری ہے کہ ورلڈ بینک سے ادارے کی بہتری اور مسائل کے حل کے لیے جانے والے کھربوں روپے وہ کیسے اتاریں گے. احسن عباسی, سٹی 21. پانی کے عالمی دن سے متعلق میئر کراچی کا بھی رد عمل سامنے آ گیا. مرتضی وہاب نے پانی کی اہمیت کو اجاگر کرنے پر زور دیا. بولے ہمیں پانی کو پینے کا پانی ضائع ہونے سے روکنا چاہیے. کراچی کو یومیہ 1100 ملین گیلن پانی کی ضرورت ہے. مزید جانتے ہیں شعیب مختار کی رپورٹ میں. 22 مارچ کو پانی کا عالمی دن منایا جاتا ہے. میئر کراچی نے پانی کی اہمیت سے متعلق آگاہی پر زور دیا. مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ 550 ملین گیلن پانی یومیہ کراچی کو سپلائی کیا جاتا ہے, جو شہر میں پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے. 50% کے شارٹ فال کو دور کرنے کے لیے K4 منصوبے پر وفاق اور صوبہ مل کر کام کر رہا ہے. کراچی کے اندر 1100 ملین گیلن پانی یومیہ ریکوائرمنٹ ہے اور سپلائی تقریباً 550 ملین گیلن یومیہ کی ہے. تو ہم 50% پر کھڑے ہیں. 50% کا شارٹ فال ہے. اس 50% کے شارٹ فال کو میٹ کرنے کے لیے K4 منصوبے کے اوپر وفاق اور صوبہ مل کر کام کر رہا ہے. پانی کینجھر سے ہمارے ایک جنکشن بے تک وفاق لے کے آئے گا, وابڈا لے کے آئے گا, اور اس کے بعد
ऑगमेंटेशन का काम जो है वो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन सिंध हुकूमत के इश्तराक के साथ कर रही है। शहर में पानी की जरूरियात को पूरा करने के लिए हब कैनाल पर नई लाइन बिछाने का दावा करते हुए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना था कि वाटर कॉरपोरेशन सिंध हुकूमत की मदद से इस मंसूबे को मुकम्मल करना चाहती है। अहम तरीन मंसूबे के मुकम्मल होने से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, वेस्ट, बल्दिया और किमाड़ी में पानी की सप्लाई के निज़ाम में बेहतरी आएगी। दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो हब कनाल से जो पानी आता है, हब डैम से पानी आता है, वहाँ पे एक नई लाइन बिछाने का मंसूबा है। अभी हमारी एलोकेशन जो है पानी की वो 100 MGD है, लेकिन लाइन पुरानी होने की वजह से, कोई 42 साल पुरानी लाइन है वो, उसके अंदर इतनी तबाही हो चुकी है कि वो पूरा पानी उठा नहीं पाता। तकरीबन कोई 50-55 MGD पानी आता है कराची में, 45-50 MGD ज़ाया हो जाता है। शहर में जल पानी के बहरान पर काबू पाने के अज़्म का इजहार करते हुए मेयर कराची का कहना था कि समंदर के पानी को मीठा करके लोगों को सप्लाई करने के मंसूबे पर भी काम जारी है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के मंसूबे TP4 और TP1 पर काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके जरिए 125 मिलियन गैलन पानी को सनती इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। माह सयाम नेकियां समेटने का जरिया, शहर भर में जगह जगह इफ्तार दस्तरखान सज गए। सिविक सेंटर पर मुक़य्यर हजरात की जानिब से सजाए इफ्तार दस्तरखान के 20 साल रोज़ाना हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। मज़ीद बताएंगी नम्रा रियासत। बिल्कुल जी, माह रमज़ान में नेकियां समेटने के लिए हर शख्स मैदान में नज़र आता है। जहां सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से इफ्तार दस्तरखान सजाए जाते हैं, तो वहीं मुक़य्यर हज़रात भी पेश नज़र आते हैं। इस वक्त हम सिविक सेंटर के मकाम पर मौजूद है और यहाँ पर एक बड़ा तवील जो है वो दस्तरखान सजाया जाता है और गुज़िश्ता कई सालों से ये दस्तरखान सजाए जा रहे हैं। इसी नेक काम का जो हिस्सा है वो रज़ाकार हमारे साथ समिया इलियास साहिबा मौजूद है, इनसे जानते हैं। बताइएगा कितने अरसे से ये दस्तरखान सजाए? माशाल्लाह 26 से 27 साल हो गए हमें ये दस्तरखान लगाते हुए। एक टेबल से शुरू का था, आज माशाल्लाह अनगिनत है और उम्मीद है कि आगे भी हम ये बढ़ाते जाएंगे सालों के साथ। अच्छा, ये बताइएगा कि रोज़ाना तकरीबन कितने लोग जो है वो यहाँ से इफ्तार करते हैं और क्या मुस्तहिक अफराद के लिए है या राहगीर भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं? ये हम सब के लिए है, मतलब इस दस्तरखान पे हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। माशाल्लाह हमारे 2:30-3 बजे से लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। आप इस तरफ भी देख सकती हैं, इसके बैक साइड पे हमने औरतों के लिए किया हुआ है। आप रोड की तरफ जाएंगे, इस तरफ आएंगे तो यकीनी तौर पर अनगिनत लोगों के लिए इफ्तार दस्तरखान सजाया जाता है हर साल, कई सालों से, जैसे कि उन्होंने बताया कि सजा रहे हैं। और न सिर्फ मुस्तहिक अफराद के लिए बल्कि तमाम लोगों के लिए दस्तरखान है। जो राहगीर भी यहाँ से गुजरते हुए रास्ते में इफ्तार हो जाए तो यहाँ रुक कर इफ्तार कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो एक अहम बात की ख़वातीन के लिए अलग से इंतज़ाम किया गया है, बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर इंतज़ाम किया गया है कि तमाम लोग यहाँ पर सुकून से बैठकर और रोज़ा इफ्तार कर सकें। जी, PS जहांगीर खान स्क्वैश चैंपियनशिप के रमज़ान जूनियर लीग स्क्वैश चैंपियनशिप का आगाज़ हो गया है। जावेद इकबाल अपडेट करेंगे। जी, मैं सर PSF जहांगीर खान स्क्वैश कॉम्प्लेक्स में मौजूद, जहाँ पर रमज़ान में स्क्वैश मुकाबले जारी हैं और ये मुकाबले नॉकआउट बुनियाद पर नहीं हो रहे बल्कि लीग की बुनियाद पर हो रहे हैं। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा मैचेस खेलने को मिल रहे हैं। हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, हमसे बात करेंगे। कहाँ से आए आप खेलने? मैं नॉर्थ कराची से खेलने आती हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे रमज़ान लीग हो रही है। मैं मलीर से आई हूँ और मेरा नाम तस्मिया है और हमारे को मौका मिल रहा है, इसलिए हम लोग अपनी मेहनत से और जज्बे से खेल रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। आप कहाँ से आई खेलने? क्या मैं डिग रोड से आई हूँ खेलने में। आज मेरा फैज़ खान से मैच था, मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की पर मैं जीते थोड़ी पॉइंट से। चलो अगली मेहनत करना, दोबारा फिर जीत जाओगे। आपके मैचेस कैसे जा रहे हैं? मेरे बहुत अच्छे जा रहे हैं। मेरा आज सफा दिलशाद से मैच था, उससे मैं जीत गई। आपने क्या किया? मैं जीत गई हूँ। मेरा किसको हराया? हसन से मैच था। अच्छा, आपने किसी को हराया? जी, आपने किसको हराया? कितने मैचेस हुए अभी तक? सामने को मेरा नाम दबिया है और क्या कहते हैं, मैंने अभी तक मुझे एक टफ मैच मिला था साइम के साथ, मैंने उसके साथ 3-1 करा और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। लीग मैचेस हो रहे हैं, सबको नॉकआउट नहीं हो रहा, तो कितना अच्छा लग रहा है कि ज़्यादा मैचेस मिल रहे हैं। जी, बहुत मज़ा आ रहा है। रमज़ान में तो और भी मज़ा आ रहा है। मैंने जीत भी रही हूँ, हार भी रही हूँ। हमें यहाँ पर मुझे ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो हमारे साथ एक बच्चा भी मौजूद है। आपने किससे मैच खेला और कैसा जा रहा है अब तक मैच? मैंने एक बच्ची से मैच खेला था, वो मैच मैंने ठीक तो खेला लेकिन हार गया मैं एंड में। तो अगली बार मेहनत करोगे ज़्यादा ताकि जीतो? हाँ, ये अभी मैंने स्टार्ट ही किया है तो इसलिए मैं अभी इतना अच्छा नहीं खेलता। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।